welcome once again to Times Now and to Frankly Speaking. It's a pleasure to meet you and also at a very important time. बहुत ही महत्वपूर्ण समय है इलेक्शन के पहले और कई लोग कह रहे हैं that the BJP has lost the election even before it has started. That there is no clear issue at hand. In 2004 you had at least two set issues. There was the foreigner issue on Sonia Gandhi and there was the India shining issue. This time the BJP BJP seems to be floundering. That was not an issue at all. That was not an issue at all. This time there are issues and very important issues are there. In election, particularly in this election, country will have to decide whether we want to support vote bank politics or development politics. The youth of the country is very, very eager to see the development politics. And I'm sure this is the agenda. The second agenda, who should lead this country? Whether Dr. Manmohan Singh ji or Advani ji. And there is it's a good opportunity. I must thankful to the Congress party that they at least came out with the name of Dr. Manmohan Singh ji. Right. So now country can take the decision that who is the able person who can lead this country. And country is facing so many crises. Country require a very strong leader, a decisive government. And these are the issues. That's the track record of governance that Dr. Manmohan Singh brings to the table. Advani has challenged him to a television debate. If good orators were to be good prime ministers or the natural bed for prime ministers, then Mr. Vajpayee would not have been in the opposition for so many years. Debate has nothing to do with the oratory. Debate is simply you'll have to sit in the one studio and you'll have to talk frankly. It's not you have to address a 1 lakh rally. And Advani is not asking him for the public rally. It's simply a debate. Some 10-15 cameramen will be there, nothing else. So you want that debate to happen? This is the best suggestion made by Advani ji. But what is that? A country like India will have to reach to the people. Let both the leaders should come on the one dais and they must debate and let the country should listen. Tell me, Modi ji, is it not a democratic way? And this, in this era of the electronic media, this is the best way to reach to the people. No, but it's not you don't become prime minister on the basis of what you say or the strength of your language or your oratory. Dr. Manmohan Singh has a record of quiet competence as an able administrator. The same virtues which you push, country does not, which you want to be recognized. Country does not feel so because this UPA government, they were thinking about the rural electricity program. They fixed some targets. They achieved only 19%. From their target, they could not. They were targeting a 4% agriculture growth. They could not. They stopped at 2.5% agriculture growth. They were talking about the Aam Aadmi government. But महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है, अटल जी के जमाने में 8 रुपये में ओनियन प्याज मिलता था, आज 16 रुपये में मिलता है। अटल जी के जमाने में 250-270 के बीच में गैस का सिलेंडर मिलता था, आज वो 350-370 में मिलता है। अगर वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो क्या करते? फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए। नेपाल सबसे बड़ा डिजास्टर, माओवादियों का वहां कंट्रोल हो गया। क्या दिया देश को? कैसे हम भरोसा करेंगे? आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है मोदी जी? देखिए 26/11 के बाद ये लगा कि आपका इशू होगा टेररिज्म और उसके बाद दिल्ली के इलेक्शंस हुए, दूसरे इश्यूज हुए और तब लोगों ने मैंडेट दे दिया कि इस पे वो बीजेपी का भरोसा नहीं करते। इट्स नॉट लाइक द पीपल ऑफ द कंट्री वोट फॉर द बीजेपी ऑन द इशू ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। आज देश में और दुनिया में आतंकवाद एक अहम इश्यू है और इन दिनों हिंदुस्तान में वो और महत्वपूर्ण हो गया है। और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र नीति का मुद्दा है। जब तालिबान पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में पहुंच रहा है, कराची पर तालिबान का कंट्रोल है, क्लेम किया जाता है, उधर माओवादियों ने कंट्रोल कर लिया हो, उधर बांग्लादेशियों में हुजी कंट्रोल कर रहा हो,
हिंदुस्तान चारों तरफ से घिर रहा हो, तो ऐसे समय आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली स्ट्रांग गवर्नमेंट होना देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप मानते हैं मोदी जी कि आज हुजी के ग्रोथ बांग्लादेश में और फॉर द ग्रोथ ऑफ द तालिबान, पीपल डोंट ब्लेम द कांग्रेस पार्टी फॉर इट. इट इज नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट. द बीजेपी ट्राइड टू पॉलिटिसाइज इट. मैं कहता हूं ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, मैं कहता हूं ये राष्ट्र नीति का मुद्दा है, देश के आम आदमी सुरक्षा का मुद्दा है. आपके पास धन हो, वैभव हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका नौजवान बेटा शाम को अगर जिंदा घर लौट करके नहीं आएगा, तो आपका रुपया, दौलत, धन, ये क्या किस काम का? ये आम आदमी को सुरक्षा चाहिए. पर मोदी जी यही कहा जाता है कि बीजेपी क्रिएट करती है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, पहला, और दूसरे आतंकवाद के खिलाफ फाइट को पॉलिटिसाइज करती है. जैसे आईपीएल के बारे में आपने स्टेटमेंट दिया, और आपने पाकिस्तान के साथ जब सबसे ज्यादा विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन, यू ऑल्सो मेड अ फ्यू कमेंट्स व्हिच वर पिक्ड अप बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही सेड दैट even Narendra Modi is questioning whether this evidence will be available in court. No, the charge, I want you to answer the charge which has been put against you and other top BJP leaders, but principally you, is that you politicize the issue of terrorism. आप इसको पोलिटिसाइज क्यों कहते हैं? क्या भारत के भाग्य का फैसला होने की चर्चा ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? यह देश सुरक्षित होना चाहिए, ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में भारत को विजयी होना चाहिए, ये पूरे देश का माहौल बनता है, ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? ये आप लोगों ने मिक्सअप करके रखा हुआ है. जो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं, वो उससे भागने के लिए रास्ते खोज रहे हैं. कोई मुझे बताएं, आप साउथ अफ्रीका में भी चुनाव है और वहां पर क्रिकेट मैच जा रहा है, हिंदुस्तान में चुनाव है, आप सुरक्षा के कारणों से हिंदुस्तान में क्रिकेट न खेला जाए, ऐसा जब निर्णय करते हैं, तब पूरे विश्व में एक संदेश चला जाता है कि भारत सुरक्षित देश नहीं है, भारत असुरक्षित देश है. और अब अगर क्रिकेट के लिए ऐसा करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में होने वाली है, दुनिया को हम क्या जवाब देंगे? और इसलिए हमारा ये मुद्दा राष्ट्र नीति का मुद्दा है. हम राजनीति में है, डज नॉट मीन कि हम जो बोले सब राजनीति हो जाती है. यू हैव हैड अ वेरी स्ट्रांग वॉर ऑफ वर्ड्स विद मिस्टर चिदम्बरम over this whole issue of the IPL. Now, in many viewers watching to this show will say, Mr. Modi, that is Mr. Narendra Modi putting a T20 match over the national election? दो चीजें अलग हैं. दो चीजें अलग. So what is more important? Because the dates clash. नेशनल इलेक्शन करने की इस देश की ताकत है, वो कर रहे हैं. मेरा राज्य है, दोनों चीजें करने के लिए सामर्थ्यवान है, और हिंदुस्तान में इन चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है. इतना बड़ा देश है, कोई तकलीफ नहीं थी. और लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का सब्जेक्ट है. गुजरात कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कर्नाटक कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इवन छत्तीसगढ़ कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. कांग्रेस पार्टी had a press conference and they showed a letter of your DGP. आपको जानकारी होगी, वो उन्होंने पुराना लेटर दिखाया जबकि चर्चा चल रही थी डेट की. लेकिन ये बहुत बेईमानी है, और भारत के गृह मंत्री ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मेरा फाइनल लेटर है मेरे डीजीपी का, जिसमें उनको कहा गया है, उसको छुपा दिया जाए. इससे बड़ा देश के साथ घोर अन्याय और गुजरात के साथ अन्याय करके मजा लेना चाहते हैं.